So hello and welcome back to the channel. So in this series, I am discussing the PYQ from UGC NET, and I am also discussing the pattern behind the paper and how I am going to tackle the paper or the question, and I am also giving the advice regarding the paper. So if you have gone through all the videos, I have already discussed the PYQs from 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, and 2023. So we have almost completed 600 questions already, and I have already discussed almost 5 to 600 concept which is there. So I hope my advice, my concept clarification, my explanation part ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हो रहे हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो जस्ट गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो, बिकॉज़ उसको पढ़ने के बाद आपको, क्योंकि नाउ द कॉन्सेप्ट हैज़ ऑलरेडी बीन क्लियर, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आर क्लियर। सो वी आर ओनली आई एम ओनली गिविंग much advice in the questions, because mostly the questions and the pattern is now repetitive. So if you have not watched the earlier video, please go and watch them so that this video become easy for you. With this, I will be taking the first question. Okay, so this is the first question. The question is, in which year WIPO is a World Intellectual Property Organization. WIPO Treaty on Intellectual Property Rights, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge has been adopted. So this is a very important question. You should note it down in the IPR section that it is in the year 2024, and a whole explanation has been written. So just go through it and note it down because it is important information. With this, I don't have anything to explain क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है which you should be just note down and remember. So I will be taking the next question. Okay, so here are some concepts involved of constitutional law. Not only constitutional law, but from precedent itself, from the sources of law in the jurisprudence. तो बेसिकली दो टर्म है, रेशियो डेसेंडाई और ओबिटा डिक्टा। और मेरे को पता है कि जिस बंदे ने भी लॉ कर रखी है उसने ये दो टर्म जरूर अपने सुने होंगे, ठीक है। बट फिर भी आई विल tell you something about this. I will try to explain it. Basically, ratio decenti is the legal principles or the legal reasoning behind on which the judgment is based. ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे केशवनंदा भारती में बोला गया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दिस इज द रेशियो डेसेंडाई ऑफ द जजमेंट, ठीक है। तो जो भी कोई लैंडमार्क जजमेंट या जजमेंट होता है उसका रीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं, और जो उतना ही पार्ट ऑपरेट करता है एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है रेशियो डेसेंडाई को हटा के, जो भी पार्ट होता है, दोज आर मेयर ऑब्जर्वेशंस और ओपिनियंस ऑफ द जजेस, एंड वो पार्ट जो होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं ओबिटर डिक्टा, ठीक है। तो एक होता है रेशियो डेसेंडाई, और रेशियो डेसेंडाई को छोड़ के जो भी पार्ट होता है वो होता है ओबिटर डिक्टा। रेशियो डेसेंडाई जो होता है दैट इज बाइंडिंग, ओबिटर डिक्टा इज नॉट बाइंडिंग। तो मैंने एग्जांपल आपको दे ही दिया है, जो भी मेन रूलिंग किसी जजमेंट की होती है एंड द रीजंस बिहाइंड दैट जजमेंट, all are ratio descendant, ठीक है। So I hope I've made my point clear. So we will be taking the next question. Okay, so this is a question from the constitutional law regarding the election commissioner. तो ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है, ये तो आप you will read down. I am going to read it. As per Article 324 of the Constitution of India, any other election commissioner or regional commissioner shall not be removed from office except on the recommendation of the, and the answer is 4, that is chief election commissioner. You can go through this, there is an explanation, but the advice which I want to give, which I have given 100 times earlier also, that is in the constitutional law, every post, constitutional post, whether it is president, whether it is vice president, or any commission which is there, like national commission for other backward classes, or finance commission, or election commission, or any kind of commission which is there, they become utmost important, and you should study them in the deep sense, and you should remember each and every provision which is related to them, ठीक है। तो ये मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, और आई होप अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो यू विल बी मेकिंग नोट्स of each and every organization which is there. With this being said, I will be taking the next question. Okay, so it is a question of environmental law, and I have already told
that the environmental law landmark judgments are very important. So this is a recent judgment जो आपको 100% पता होना चाहिए, और इसके आसपास के अगर कोई और भी इम्पोर्टेंट जजमेंट है तो वो भी आपको एनवायरमेंटल लॉ के लैंडमार्क जजमेंट्स पता होने चाहिए। और उसके अलावा जो भी रिसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड हो या वक्फ से रिलेटेड हो, या जो भी जजमेंट्स आ रहे हैं उनका आपको नाम पता होना कंपलसरी है। सो विद दिस बीइंग सेड, आई विल रीड द क्वेश्चन। MK Rajneesh versus Union of India 2024 deals with which of the following? And the answer is preservation of biodiversity and climate change. So with this, I will be taking the next question. Okay, so this is an important question from intellectual property rights. Which kind of intellectual property protection is available for trademark? Statutory protection alone, common law protection alone, both statutory and common law protection under the Trade and Merchandise Act 1958. ठीक है, and the answer is both statutory and common law protection, because the protection under Trade and Merchandise Act has now been converted into Trademark Act 1999, ठीक है, which includes statutory and common law protection, because trademark is something which is of very which is being followed from the very ancient times, मतलब काफी लगभग टाइम से ट्रेडमार्क को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई पुराना लॉ होता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, एंड स्पेशली इन द केस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड बहुत पहले से होता आ रहा है, मानव सभ्यता का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। तो ट्रेड से रिलेटेड बहुत से कस्टम बहुत पुराने हैं, सिंस टाइम इमेमोरियल है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इफ इवन इफ यू आर फॉर्मिंग मॉडर्न लेजिस्लेशन। सो कहीं ना कहीं उस मॉडर्न लेजिस्लेशन की जो नींव है वो भी कस्टम्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज बोथ स्टैट्यूटरी एंड कॉमन लॉ प्रोटेक्शन। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड द पॉइंट। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is an interesting question from comparative constitutional law, which is now asked in the UGC नेट एग्जाम। तो आपको एटलीस्ट मेरी राय ये है कि यूएस के तो जितने भी अमेंडमेंट्स मोटे मोटे हैं ना, वो आपको ऊपर से पता होने चाहिए। ठीक है, कितने अमेंडमेंट्स हैं, है ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, है ना, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अमेंडमेंट या अमेंडमेंट से रिलेटेड अमेंडमेंट, तो वो पता होने चाहिए। और इसमें पूछा है which amendment the US to the US Constitution is important in defining the power reserved to the states, and the answer is option 3, that is the 10th amendment. And the first amendment protects freedom like speech and religion. It deals with the freedom, जैसे कि हमारे आर्टिकल 19 में है। नाइन्थ अमेंडमेंट एड्रेस करता है कुछ राइट्स को, एंड फिफ्थ अमेंडमेंट डील्स विद द ड्यू प्रोसेस एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन हमारे पास आर्टिकल 20 में है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 21 में है। तो इस तरीके से एक थोड़ा सा कंबाइन करके आप एक कंपैरेटिव नोटबुक बना सकते हैं। बट ये कई बार पूछे जा चुके हैं, है ना। पीछे भी अगर आपने नोट डाउन किया होगा, कुछ अमेंडमेंट लिखे हुए थे, उनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी होगी लास्ट पीवाईक्यूज में। तो अगर आपने वो नोट डाउन कर रखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इजी हो गया होगा, आई होप। बट इफ नॉट, तो अभी ये पांचों के पांचों नोट डाउन कर लो, और इसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट दिखे एक बार यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू कर लो। अंदर डीप नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से जो प्रोविजंस हैं वो थोड़े से याद करने की कोशिश करनी है अपनी नोटबुक में नोट्स बना के। सो दिस इज द एडवाइस, एंड आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन फ्रॉम आईपीसी, दिस पार्ट इज फ्रॉम द किडनैपिंग पार्ट। अब आईपीसी के लिए तो मेरे को लगता नहीं मुझे एडवाइस देने की भी जरूरत है, बट द ओनली एडवाइस विच आई वांट टू गिव इज टू गो थ्रू द बीएनएस प्रोविजंस एंड आल्सो द रीसेंट अमेंडमेंट इन द बीएनएस, क्योंकि अब वो पूछे जाएंगे। ठीक है, विद दिस बीइंग सेड, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ पर्सन कैन बी पनिश फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 369 ऑफ आईपीसी फॉर किडनैपिंग और abducting a child with intent to steal from the person. For the application of section 369 of IPC, the child must be, and the answer is under the age of 10 years. So the child should be under the age of 10 years. और इसी के अलावा ना कुछ और भी ऑप्शंस, कुछ और भी जो प्रोविजंस है दैट इज रिलेटिंग टू किडनैपिंग, उसमें भी एज का कुछ मेंशन है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस में। तो एक बार गो थ्रू कर लो किडनैपिंग के प्रोविजंस और एज के प्रोविजंस जहां पर भी हैं, उनको एक नोट डाउन कर लो कि कौन से प्रोविजन में कितनी एज चाइल्ड की प्रिस्क्राइब कर रखी है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो जो भी एडवाइस थी आई हैव गिवन, सो जस्ट नोट इट डाउन एंड मूव ऑन।
Okay, so this is a repeat question, so I will not be going in deep. I just read how many independent judges composes the International Court of Justice, and the answer is 15 judges. बस अगर आपने पीवाईक्यूज पिछले रीड किए हैं तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो उसमें एक्सप्लेन था। ये जरूर देख लेना कि विच ऑफ द प्रोविजन और द आर्टिकल ऑफ द इंटर यूएन द चार्टर ऑफ द आईसीजे डील्स विद दिस थिंग, जिसमें ये मेंशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि वो अगर पीवाईक्यू पिछले वाले आपने गो थ्रू किए हैं तो उसमें सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है, तो वहां पर आपने नोट डाउन कर रखा होगा। इफ नॉट तो इसको चेक कर लो कि इफ इट इज नोटेड डाउन, इफ इट इज नॉट नोटेड डाउन, नोट इट डाउन। Okay, so this is a very very hard question which is not easy to answer. So the advice is, because यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आपको एक तुक्का लगाना है, उससे ज्यादा कोई एडवाइस नहीं है इसमें। इसको मैं पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिफाइंड इन द अनडिफाइंड, नोट इट डाउन दैट इट इज अनडिफाइंड इन द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली 1990, एंड द आंसर इज अनऑर्गेनाइज्ड। तो माइग्रेंट वर्कर, सीजनल वर्कर एंड फ्रंटियर वर्कर आर देयर विच इज डिफाइंड। तो आई हैव रिटन ऑल द प्रोविजंस इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट। बस इसको एक बार गो थ्रू कर लो, है ना। अगर अच्छी बात है अगर आप याद कर लो, वरना ये कुछ हार्ड क्वेश्चन है, दिस इज ओनली देयर जस्ट टू अवॉइड। ओके, सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू, रिपीट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने पहले इसको डिफाइन कर दिया है, एंड एक्सप्लेनेशन वहां पर भी थी और यहाँ पर भी होगी, तो बस इसको एक बार नोट डाउन कर लो। और अगर आपने पहले पीवाईक्यू देखे हैं तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा। हु कॉइन्ड द टर्म इंग्लिश फ्रेज इंटरनेशनल लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड द आंसर इज जेरेमी बेंथम। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so it is also a very easy question from the historical law, because Savini is the jurist in the historical school of jurisprudence, है ना। और ये अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा, अगर आपने गो थ्रू कर रखा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। दैट सेवेनी वाज अगेंस्ट कोडिफिकेशन, और बिकॉज ऑफ हिम द कोडिफिकेशन ऑफ जर्मनी हैज इज लेट अप टू 50 years बिकॉज ऑफ हिम ओनली, है ना। तो ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो द ऑप्शन इज 4, 7 वाज इन फेवर ऑफ द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, इज इनकरेक्ट, है ना। Because Savigny was not, Savigny was against natural law. This is their Volgi, the theory of Savigny made it impossible for the comparative study of law. It is also true. Savigny did not recognize legislation as a potent source of law, and that is because he does not like codification at all, legislation के against था। तो इसीलिए जो codification of Germany था वो delay हुआ almost for 50 years। So I hope my point is very clear, so I will be taking the next question। Okay, so this is also a very very hard question, ठीक है, बिकॉज इतना डीप डाउन माइनर लॉ को नहीं पढ़ते हैं, बट स्टिल इफ इट केम तो इट इज आवर ड्यूटी टू गो थ्रू all the option which is there। तो मैंने I have explained them। The question is, an independent director shall be eligible for reappointment on, and the answer is passing special resolution। So those of you who already know this, very good, very important thing to note down all the thing। But the advice which I have already given, that in the case of minor laws, आपको is एक तो पढ़ने हैं definition clause, and then you have to read all the commissions, or if anything is constructed or made, any commission is there in that particular law, तो ओनली दीज थिंग यू शुड गो थ्रू। इसके अलावा सारी चीजें कोई ज्यादा डीप डाउन पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना। अब ये जो अगर कोई क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा है तो उसके ऑप्शंस आपको पढ़ लेने हैं, उनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली चीजें उसी में से रिपीट होंगी, है ना। डायरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, तो डायरेक्टर तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, बिकॉज इट इज अ बॉडी विच इज स्टैट्यूटेड बाय द कंपनी लॉ, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जस्ट गो थ्रू एंड वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ऑप्शंस में से रिपीट है। आईटी एक्ट के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड, तो उसमें एक ऑप्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का ये भी था। तो देखा आपने, सारे ऑप्शंस पढ़ने का ये फायदा होता है, क्योंकि देखो अब हमारा ऑलमोस्ट सारा पैटर्न क्लियर हो चुका है ना। चीजें कहाँ से रिपीट हो रही हैं, कितने पोर्शन से रिपीट हो रही हैं, ये मैंने आपको पहले हिंट दे दी थी, अब आपको प्रैक्टिकली दिख गया है।
ठीक है, कि मेरी जो दी हुई हिंट थी बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस थी, और वो एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं था। ठीक है, तो उसके सारे सबूत अब हमें मिल चुके हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द कंटेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एंड द आंसर इज 65 बी। बट आपको बस एक एडवाइस और है, जो कि एक एडिशनल एडवाइस है, दैट जस्ट गो थ्रू बीएसएम और उसमें देख लो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सेक्शंस कहाँ मेंशन हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। उसके अलावा एविडेंस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस नाउ अब तो अकॉर्डिंग टू बीएसए आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोविजंस बीएसए में, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ मेंशन है, बस वो एक बार नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। विद दिस बीइंग सेड, वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ना इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व। एक्चुअली फॉर मी आल्सो इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इतने डीप डाउन ना कोई माइनर एक्ट को नहीं पढ़ता है। हालांकि मैंने आपको एडवाइस दे रखी है कि यू शुड बी गोइंग थ्रू द माइनर एक्ट डेफिनेशन, बट क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में जाकर, तो ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा अंदर की चीज है ना। तो हमें इसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस याद रख लेने हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट में हमें जाके नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, क्योंकि देखो अथॉरिटी तो ऑलमोस्ट हर की इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक तो चीज होती है ना माइनर एक्ट। माइनर एक्ट में जैसे कि आईटी एक्ट आ गया, तो कंपटीशन एक्ट आ गया, कंपनी एक्ट आ गया। ठीक है, तो इसको तो फिर भी हम एक मोटा मोटा पढ़ के डेफिनेशन क्लॉज पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी एक्ट आउट ऑफ द ब्लू, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पूछा जा रहा है फॉरेन कंट्री में, तो ये तो इम्पॉसिबल है। बस सीखने वाली बात जो हम सीख सकते हैं दैट इज कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कौन से सेक्शन में फॉल करती है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत चीजें हम सीख सकते हैं, अदरवाइज दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, सो जस्ट नोट इट डाउन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is an important question from section 24 of the Indian Contract Act. बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आपने आई थिंक अभी तक गो थ्रू कर ही लिया होगा, क्योंकि मैं इतनी बार एडवाइस दे चुका हूँ, और इससे काफी सारे रिपीट क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। पीवाईक्यूज में कई बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सेक्शन 20, 21, 22, 23, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। तो आई होप यू आपने गो थ्रू कर लिया होगा इसे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 24 of the Indian Contract Act 1872, if only a part of the consideration of object is unlawful, the contract shall be void in total. Because under section 24 of the Indian Contract Act, even if the consideration is in part unlawful, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरीके से लॉफुल होना कंपलसरी है। थोड़ा सा भी अगर वो अनलॉफुल है, तो पूरी तरीके से उसको हम वॉइड कह सकते हैं। ठीक है, इट इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड अंडर सेक्शन 24 if you go through. So with this, there is nothing more to explain, so I will be taking the next question. Okay, so this is an interesting question. थोड़ी सी लीगल रीजनिंग, थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग, एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस। वेरी इजी क्वेश्चन, so we will be reading the question. Which of the following statement is incorrect? So a child in the mother's womb is a legal person. Yes, it is true. Even in the Transfer of Property Act or the Indian Succession Act, it is expressly mentioned. Also in the Hindu Succession Act, it is expressly mentioned. So yeah, it is correct. It is basic jurisprudence, so it's correct. A dead person has the right to regulate his property according to his wishes when he is not living, and the instrument is called will. ठीक है, तो हमको जैसे पता है कि विल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू मरा हुआ आदमी अपनी विशेस को एनफोर्स करा सकता है। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, एनिमल्स आर सब्जेक्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि दो नाउ एनिमल्स आल्सो हैव राइट्स, है ना। कुछ एक्ट्स हैं जिसके थ्रू एनिमल्स को भी, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 वी हैव, तो उनके पास भी कुछ राइट्स होते हैं, बट ड्यूटीज नहीं होती, और इंसानों जितनी तो बिल्कुल नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमें चौथी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल पढ़ लो। A partnership firm is not a legal person, therefore it cannot be sued or sued in its name. Yes, it is not a legal person, so it cannot be sued or sued in its name. ठीक है, पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन नहीं होती है, कंपनी लीगल पर्सन होती है। तो आई होप पॉइंट सारे क्लियर हैं। तो आप गो थ्रू कर सकते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन पार्ट भी।
And with this being said, we will be taking the next question. Okay, so another important question from the Indian constitutional law or the Constitution of India, that is, which articles were added to the Constitution of India to facilitate the establishment of specific tribunals to meet the needs of administrative justice? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस में बनाया गया? और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, कमीशन हो, ट्रिब्यूनल हो, पोस्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना? उसके अलावा जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वो तो हैं, बट दीज आर द चेरी ऑन द टॉप, फाइनेंस कमीशन डिफरेंट। तो ये तो मैं एडवाइस दे चुका हूँ इसी वीडियो में भी, तो आई विल बी नॉट गोइंग इन डिटेल, एंड द आंसर इज आर्टिकल 323A एंड 323B। और आपको पता होगा कि 338A और 338B तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड कास्ट से डील करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी किससे डील करता है वो भी आपको पता होगा अभी तक, है ना? तो आई डोंट थिंक देयर समथिंग टू एक्सप्लेन। बाकी चीजें आप यू कैन सी इन द our explanation part. So I will be taking the next question. So this is an important question from the criminal law. That is, in which of the following judgment the Supreme Court has held the exception 2 to the section 375 is violative of the right of girl child below 18 years of age. Very interesting and important landmark judgment, that is Independent Thought versus Union of India. आई होप इसके अलावा भी जो जजमेंट मेंशन है वो एक्सप्लेनेशन में मैंने डिटेल में दे भी दिए हैं, आपने अभी तक तो ये सारे जजमेंट से गो थ्रू हो गए होंगे, है ना? क्योंकि ये सारे के सारे बचे हुए जजमेंट्स तो रिपीट हैं पीवाईक्यूज से, है ना? तो ये एक हमें पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है? बट ये इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन में आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज इट डील्स विद rape, and rape is an important provision, एंड ऑल्सो गो थ्रू द बीएनएस कि बीएनएस में भी ये प्रोविजो कहाँ पर फॉल करता है, ये एक बार नोट डाउन करने वाली चीज है ना? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शन 2 जो थी वो स्ट्रक डाउन कर दी थी, विच अलाउड मैरिटल रेप ऑफ अ गर्ल दैट इज एज 15 to 18 years बाय हर हस्बैंड। ठीक है, तो इस एक्सेप्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, है ना? ये बताते हुए कि दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड दी 21 of the Indian Constitution. So very landmark judgment. Just note it down. Okay, so an interesting question from the IT Act. Acha, in the last PYQs of 2023, I have already given the advice that the provisions like Shriya Singhal versus Union of India से related कौन सा provisions है, और ये एक लाइन है सेक्शन 60 से लेके सेक्शन 70 तक की, उसके आगे भी ये थोड़े से सेक्शंस हैं। अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन क्लॉज, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और अनुराधा भसीन वाला जजमेंट इन्हीं सेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है किसी स्टेट में। तो ये 2-3 जजमेंट ये आपको पता होनी चाहिए और इनसे रिलेटेड प्रोविजंस पता होनी चाहिए, and, ये भी सेम उसी से प्रोविजन है। अच्छा, ये प्रोविजन एक और प्रोविजन से मेल खाता है, दैट इज वॉयरिज्म अंडर द आईपीसी, है ना? तो हम इसको पढ़ लेते हैं। विच एक्शंस आर कवर्ड अंडर द ऑफेंस ऑफ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी अंडर सेक्शन 66E ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एंड द आंसर इज नॉन कंसेंशुअल कैप्चर, पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंटीमेट इमेजेस। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, जो कि मतलब सामने लिखी हुई है, इसमें एक्सप्लेन करने वाला जैसा तो कुछ भी नहीं है, बट जो एडवाइस थी वो मैंने बता दी है कि वोयरिज्म का सेक्शन इससे मेल खाता है, वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना? स्टॉकिंग वगैरह वो जो पूरा एक प्रोविजन है वो बीएनएस में आप कहाँ फॉल करते हैं, ठीक है, वो देख लेना। और श्रेया सिंघल अनुराधा भसीन वाला जजमेंट देख लेना, और ये पूरी लाइन देख लेना, सेक्शन 65 है इसमें, है ना? सेक्शन 67 है। तो ये सारे के सारे सेक्शंस आईटी एक्ट के इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाईलाइटेड एंड लैंडमार्क जजमेंट्स आर देयर। So with this being said, I will be taking the next question. Okay, so an important question from recognition. तो रिकॉग्निशन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। ब्रीफ में बता देता हूँ कि चारों कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाने वाले हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब इजी क्वेश्चन है, रिकॉग्निशन हम उसको कहते हैं कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये होता है कि हम फॉर्मली मान लेते हैं कि यस दिस इज कंट्री विच एग्जिस्ट इन आवर आइज। तो ये थ्रू ट्रीटीज भी होता है ना? और ऐसा भी होता है कि जैसे यूनाइटेड नेशन ने किसी कंट्री को रिकॉग्निशन दे दी, तो ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज पार्टी हैं यूनाइटेड नेशंस की, वो उसको रिकॉग्निशन दे देती हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन के फायदे क्या होते हैं? रिकॉग्निशन के फायदे ये होते हैं कि आप ट्रीटी कर सकते हैं, उनसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? और उसके अलावा आप अपनी एम्बेसी उस कंट्री में बना सकते हैं, है ना? दीज आर सम ऑफ द फीचर्स विच इज देयर ऑफ द रिकॉग्निशन। अब यहाँ पर 4 तरीके के रिकॉग्निशन दे रखे हैं। इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन,
The question is, which of the following refers to a clear and formal expression of recognition by a state through official communication or diplomatic statement? एंड द आंसर इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब बेसिकली एक्सप्रेस हो गया कि आपने बिल्कुल एक्सप्रेसली फॉर्मली अपने यहाँ उसकी एम्बेसी बनवा के या किसी भी कोई ट्रीटी करके या इस तरीके से आपने उसको रिकॉग्निशन दे दी। इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट का मतलब होता है छुपे तौर, मतलब नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपने काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट दे रखी है उसकी, जैसे कि आपने उससे कोई ट्रीटी कर लिया कुछ इस प्रकार से। तो ये फॉर्मल नहीं होता बट इनफॉर्मल टाइप का होता है। कलेक्टिव रिकॉग्निशन उसको ही कहते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन में किसी को अगर मेंबरशिप दे दी तो वो एक तरीके से मान लो कि यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट सबने ही उसको रिकॉग्निशन दे दी, ठीक है। कंडीशनल रिकॉग्निशन, तो द वर्ड कंडीशनल इटसेल्फ टेल्स द स्टोरी दैट कंडीशनल रिकॉग्निशन उसको हम बोलते हैं कि जब जो रिकॉग्निशन है वो कंडीशनल है, कि आप अगर एक पर्टिकुलर इस कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो देन यू विल बी गेटिंग आर रिकॉग्निशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है कि आप ह्यूमन राइट लॉस को पूरी तरीके से कंप्लायंस करते हैं, ठीक है, तो देन ओनली वी आर गोइंग टू गिव यू रिकॉग्निशन। तो इसको कहते हैं हम कंडीशनल रिकॉग्निशन। आई होप ऑल दीज आर क्लियर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई टफ नहीं है, वर्ड से ही मेंशन होने वाले कॉन्सेप्ट है। तो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so another question from the landmark judgments of the Supreme Court of India. तो अगर आपने पुरानी PYQs देखे हैं तो यू हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन इन योर नोटबुक ऑल दीज इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, सारे के साथ, जैसे ईपी रो है, आर्टिकल 40 राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है, और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 2040 रिलेटेड टू रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर राइट्स एंड ऑल से रिलेटेड है, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज इट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन emphasizes the need to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity? तो ये चारों की चारों किस पे क्वेश्चन में किस लैंडमार्क जजमेंट में बोला गया है? दिस इज के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल, ठीक है। तो एक और स्टेटमेंट के एस पुट्टास्वामी से रिलेटेड हमें मिल चुकी है, विच यू शुड बी नोटिंग डाउन इन योर नोटबुक्स, है ना। विद दिस बीइंग सेड, ये सारी जजमेंट हम पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, सो वी विल नॉट बी गोइंग इनटू डिटेल नाउ in this question. So I will be taking the next question. Okay, so this is another important question from the IT Act. अब बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, लॉजिकल और लीगल रीजनिंग यूज करके भी यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दिस। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट issued by the certifying authority can be revoked, and the answer is on the request of the subscriber, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप, अंडर नो सर्कमस्टांसेस ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसको एब्सोल्युटली नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, नहीं, डिस्प्यूट भी अगर हुआ है तो यू शुड गिव अ रिक्वेस्ट, है ना, ऐसे हवा, मतलब ये तो लॉजिकल चीजें हैं, है ना, विच कैन बी लॉजिकली डिड्यूस्ड। और other grounds are also mentioned in the explanation part, that is false information in the certificate. If there is any kind of false information given, then it can be revoked. Comprise of the private key, then in this ground it can be revoked, and death or dissolution of the subscriber for firm, ठीक है। या तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है या फिर डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर हो जाती है, तो इन दोनों कंडीशंस में भी इट स्टैंड्स रिवोक्ड। तो आई होप आई हैव मेंशन्ड देम, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, जस्ट गो थ्रू दिस, and also you should know what is the section in this digital signatures certificate is mentioned in the IT Act, because मैंने पहले ही बोला है कि definition clauses और कोई टर्म डिफाइन कहीं भी हो रहा है तो वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से माइनर लॉज में सवाल बहुत इजीली बन जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी सोचता है ना कि कहाँ से सवाल बनाऊं, तो ये बहुत से सवाल उसको किसी माइनर एक्ट में मिल जाते हैं जो कि थोड़ा टफ भी हो जाते हैं, है ना। टफ उनके लिए है जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, इजी उनके लिए है जिनको एटलीस्ट ये पता है कि डेफिनेशन क्लॉजेस आर इंपॉर्टेंट। सो विद दिस बीइंग सेड, आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so another important and interesting question from the constitutional law, that is from the emergency. तो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि सारे के सारे इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट हाँ एक चीज ये इसकी लिस्ट बना लेना कि नेशनल इमरजेंसी में कितना टाइम है, स्टेट इमरजेंसी में कितना टाइम है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में कितना टाइम है, विदाउट दी अप्रूवल की बना लेना, और विद अप्रूवल मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी है। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, what is the maximum periods of its operation without approval फ्रॉम पार्लियामेंट, एंड दैट इज 2 मंथ, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी के इसमें शायद ये 1 मंथ है, मेरे को सही से याद नहीं, तो आप एक बार इसको देखकर नोट डाउन कर लेना।
नेशनल इमरजेंसी के केस में देख लेना, और उसको एक्सटेंड करने का क्या प्रोविजन है वो देख लेना, और एक्सटेंशन मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हो सकता है, जैसे शायद स्टेट इमरजेंसी में 3 साल मैक्सिमम पीरियड है ना। तो इसको गो थ्रू कर लेना एक बार, और इसकी लिस्ट तैयार कर लो अगर नहीं की है अभी तक तो, बिकॉज क्योंकि ये तो कई बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है ना। तो आई होप आपने इसको गो थ्रू कर लिया होगा, बट अगर नहीं किया तो इस तरीके से एक लिस्ट और तैयार इसकी जरूर कर लो। ओके, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉस के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि दैट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम डाइवोर्स, काइंड ऑफ डाइवोर्स, sections of divorce, or dissolution of Muslim marriage. If it's the personal laws in Muslims, so dissolution of Muslim Marriage Act, ठीक है, this is the only act which is only dedicated to the dissolution of marriages by women. ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये आता है ना। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, apostasy from Islam of a Muslim wife A will dissolve the marriage ipso facto, will not dissolve her marriage ipso facto, dissolves her marriage and she loses her claim to dower, dissolves her marriage and she does not lose her claim to dower. And the answer to this is 2, will not dissolve her marriage ipso facto. ipso facto का मतलब होता है जिस दिन उसने अपनी डिनाउंस किया रिलीजन को, उसी दिन उसको द मैरिज विल बी डिसॉल्व। बट इट इज देयर इन द मुस्लिम लॉ, बट इस चीज को नल करने के लिए ही ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन डाला गया था। तो इसीलिए द क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी इसलिए इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन 4 और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 से, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस द मैरिज विल नॉट डिसॉल्व इस इप्सो फैक्टो, ठीक है। सो विद दिस आई डोंट थिंक दैट मोर इज देयर टू एक्सप्लेन, सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू गॉट अनदर मैक्सिम टू राइट इट डाउन। और मैक्सिम के बारे में मैंने पहले ही बताया कि ये सारे मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लॉ में है, आपका टॉर्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, ऑलमोस्ट हर एक्ट में आपको मैक्सिम मिलेगी। And soon I will be preparing a video on all the maxims, so you don't have to go anywhere and all the maxim will be there. But still अभी तक हम बहुत सारे मैक्सिम्स को डील कर चुके हैं क्योंकि बहुत सी पीवाईक्यूज में मैक्सिम्स पूछी जाती हैं। तो आई होप आपने लगभग उन मैक्सिम्स का नोट डाउन कर ही लिया होगा। और द क्वेश्चन इज द मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स इज रिलेटेड टू स्लाइट। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप बाकी एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में इसमें मैंने लिख ही दिया है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, और ये दिस इज वेरी सिंपल मैक्सिम। सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रेंच लीगल सिस्टम। तो हम पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन को, सारे ऑप्शंस को हम नोट डाउन कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज द पीवाईक्यू, ऑल द ऑप्शंस बिकम रेलेवेंट एंड important. Question is, which of the following is not a feature of the French administrative legal system? First, dual system of courts separating administrative and ordinary courts. This is there in the French system. Consul etat as the supreme administrative court. This is also there. Principle of judicial independence. This is also there in the French administrative legal system. Last one, use of stare decisions in administrative decisions. तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीजेस हमने बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ी है लास्ट वीडियो में, बिकॉज द क्वेश्चन इज देयर इन द पीवाईक्यूज ऑफ 2023। स्टिल एक ब्रीफ में बता देता हूँ। स्टेयर डिसीजेस का मतलब होता है कि द judgment of the higher courts are binding on the lower courts, which is also in the Indian constitution, है ना। our supreme court is the court of record, it is mentioned। तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, और हाई कोर्ट के डिसीजन जो है वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग है ना। तो इसी तरीके से इसको ही स्टेयर डिसीजन की डॉक्ट्राइन कहते हैं कि द डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। तो use of steer decisions in administrative decisions are not followed in the फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम। तो ये फॉलो नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन ये चारों तीनों फॉलो होते हैं, ये हम नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि अगली बार ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा फॉलो होता है। सो विद दिस बीइंग सेड आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द हिंदू लॉ, जो कि मेरे को लगता नहीं मेरे को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है। आई विल जस्ट बी गोइंग थ्रू दी क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी of a Hindu to adopt Hindu male to adopt?
First is consent of the wife under certain circumstances. Yes, this is a condition. Majority is a condition. And soundness of mind is a condition. तो इन तीनों कंडीशनों के लिए तो हमें वैसे भी, अगर जनरल जूरिस्प्रूडेंस भी हमें पता है तो हमें पता होगा, ठीक है। फोर्थ इज मस्ट बी नेसेसरीली मैरिड. नो, इट इज नॉट देयर. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन शुड बी मैरिड इन अंडर हिंदू लॉ टू अडॉप्ट, ठीक है। तो विद दिस बीइंग सेड, बाकी आपको ये सारे प्रोविजंस एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। जिसमें हमारे पास कैपेसिटी ऑफ हिंदू मेल टू अडॉप्ट मेंशन होंगी. यू जस्ट गो थ्रू ऑल द प्रोविजंस, है ना। सो विद दिस बीइंग सेड, बहुत इजी क्वेश्चन है. वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द थॉट ऑफ नुइसेंस. नुसेंस में बेसिकली क्या होता है कि इंजॉयमेंट ऑफ लैंड होता है, और उस इंजॉयमेंट ऑफ लैंड में किसी तरीके का इंटरवेंशन होता है, तो उसको हम नुसेंस कहते हैं. तो नुसेंस नेग्लिजेंस ये हम डीप में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि दीज आर ऑल रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम दी लास्ट ईयर्स पीवाईक्यूज व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन. सो द कॉन्सेप्ट हैज ऑलरेडी बीन डेल्ट इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियोज. बट फिर भी एक एग्जाम्पल से इसको मैं क्लियर कर देता हूँ. जैसे कि आपने घर ले रखा है और आपका पड़ोसी म्यूजिक बजाता है बहुत ज्यादा लाउड वॉल्यूम में रात को या दिन को, या कोई ऐसी मशीन का इनकॉर्पोरेशन करता है अपनी उसमें लगाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की आपकी इंजॉयमेंट ऑफ आपके लैंड में, पीसफुल इंजॉयमेंट में आपकी खलल पड़ रही हो, है ना, तो उसको हम न्यूसेंस कहते हैं, ठीक है. सो विद दिस बीइंग सेड, आई होप इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. And now we have completed almost 600 plus questions, and we have almost dealt with 600 plus concepts, है ना. एडवाइजेस हैज बीन गिवन. सो आई होप ये सारी एडवाइजेस, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ये आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा हो, आप नोटबुक बना रखी हो. एंड विद ऑल दीज videos, it is easy for you to revise the PYQs and revise the whole syllabus of the UGC नेट, है ना. तो आई होप ये सारे आप कर रहे हैं, सारी एडवाइजेस आपने फॉलो कर रहे हैं, और आप मैक्सिमम बेनिफिट इसका उठा पा रहे हैं. विद दिस बीइंग सेड, I will be meeting you in the next video.